Namaskar, I am Sudhanshu Mishra. We are going to discuss diuretics in this video. So in this video, we will particularly cover the introduction part, the definition, the classification of diuretics, the mechanism of action, class side effects, adverse effect, and the miscellaneous part. So diuretics. Why do we study diuretics? What is the need of studying diuretics? Why do we prefer actually in which organ we study diuretics first of all? So diuretics basically works on nephrons. Nephrons belongs to kidney. So we have a pair of kidney. We have a pair of kidney in our body. That means we have two kidneys. That means we have two kidneys in our body. हमारे बॉडी में दो किडनी होती है और किडनी कुछ इस तरीके की दिखती है. हमारी ड्राइंग को आप जज मत करिएगा बिकॉज आई नो आई एम बैड एट इट. इट्स अ हैप्पी किडनी. इट्स अ हैप्पी किडनी. सो किडनी लुक्स समवॉट लाइक दिस. एंड किडनी, do you know how much nephrons does kidney have? It has small tubular structures called nephrons. क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं. ये एक बहुत छोटे स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं. ठीक है, तो हमने दो चीजें सीखी. दीज आर नेफ्रॉन्स एंड किडनीज. अब दोनों के फंक्शंस पहले हम समझ लेते हैं कि किडनी के फंक्शंस क्या क्या है. किडनी फर्स्ट फंक्शन दैट इट एक्ट्स एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन. कि भैया जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा हमारी बॉडी में उसको हम एक्सक्रीट आउट किससे करते हैं? किडनी के थ्रू करते हैं. किडनी इज ऑल्सो अ वे an organ where we can excrete out the waste products in our body in form of urine. अच्छा, दूसरा क्या है? It balances. क्या करती है? Balances the electrolytes. हमारी बॉडी में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं. सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ऐसी तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिनको ये बैलेंस करती है. एक ऑप्टिमम अमाउंट हमारे बॉडी में मेंटेन करके रखती है जिससे जितनी हमको ज़रूरत है उतनी हम अपने बॉडी में रखेंगे, बाकी सारी एक्सक्रीट आउट कर देंगे. एंड देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन बैलेंसिंग द ब्लड वॉल्यूम. हमारी ब्लड की वॉल्यूम भी डायरेक्टली अफेक्टेड होती है इससे. हमारी ब्लड की वॉल्यूम भी डायरेक्टली अफेक्टेड होती है टू द फ्लो ऑफ एंड एक्सक्रीशन ऑफ किडनी. ठीक है. एंड नेफ्रॉन्स आर स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन्स विच आर फाउंड इन किडनी. नेफ्रॉन्स क्या होती हैं? दीज आर फंक्शनल यूनिट. दीज आर एक्चुअली द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. दीज आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. अच्छा, लेट मी टेल यू अ फैक्ट. वी आर मिलियनेयर्स. हम मिलियनेयर्स हैं एज फार एज नेफ्रॉन्स आर कंसर्न्ड. और ईच किडनी कंटेन्स अराउंड 1.2 मिलियंस ऑफ nephrons. So we are millionaires as far as nephrons are concerned. So total we have around 2.4 millions of nephrons. 2.4 millions of nephrons. Okay, let's come to the here we can see our kidney, happy kidney. This is not kidney, this is happy kidney. So we have one kidney and another kidney. We have two pair. Sorry, we have a pair. That means we have two kidneys. This is the kidney, this is the ureter we have, and then here we have the bladder where the urine collects before being excreted out. And let me show you the quick overview of a structure of nephrons. We came to know how much numbers are there in our body. How the nephrons work is basically depends on the structure. So this is the structure of nephron. I told you not to judge my drawing skills.
because I know it's really bad. Okay, so this is nephrons. This is our circulatory system. Okay, this is where the blood flows. This is where the blood flows. Okay, and this is these are the portions where the electrolytes gets exchanged or the electrolytes gets incorporated into the nephrons. यहीं से जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है, हमारी ब्लड में, वो इनकॉर्पोरेट होती है कहाँ पे? इन आवर नेफ्रॉन्स. ठीक है, अब हमारा जो ब्लड है, लेट मी शो इट विद अनदर कलर. जो हमारे पास ब्लड है, ब्लड, अब सपोज दिस इज आवर हार्ट, दिस इज आवर हार्ट. जस्ट टू सपोज, दिस इज नॉट आवर हार्ट, just to suppose this is our heart. It pumps around 5 liter blood per minute. It pumps around 5 liter blood per minute, but only how much blood reaches to the nephrons? Only 20%. 20% of the blood reaches to the nephrons. That means that is around 1 liter. That is around 1 liter. It is around 1 liter. And in this 1 liter, we have the ratio 40% and 60%. We have 40% cells and 60% plasma. And this plasma is required here. This plasma comes here and gets exchanged. Suppose this plasma is 60%, that means we have 600 ml to come here for the exchange and transfer. Okay, in this 600 ml, suppose how much amount is transferred here for one time? This is 120 ml. This is 120 ml. So basically, first let me tell you about the structure of nephrons. These nephrons, these are the glomerulus. This is the Bowman's capsule. Bowman's capsule. This is PCT. This is descending loop of Henle, and this is ascending loop of Henle. And then we have DCT from here, DCT to here, and then we have collecting tubules. So first we will, as we came to know, 600 ml is ready to be transferred. 600 ml में से सिर्फ और सिर्फ 140 ml 120 ml फिल्टर होके आता है. 120 ml फिल्टर होके आता है और 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है. अराउंड 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है वापस as needed by the body, and only 1 ml is found in form of the urine. सिर्फ 1 ml बचता है, around 1.2, but we are saying 1 ml here. Okay, so the structure of nephrons is, I think, clear now, and also we have seen the amount of blood plasma reaching to the nephrons in the one go. Okay, next we will go on. So we should discuss first. So first term is polyuria, second term is oliguria, third term is diuresis, the fourth term is natriuresis, the fifth term is calci or caliuresis, sixth term is magniuria, seventh carbouria, miscellaneous. We will discuss this in miscellaneous portion.
Okay, polyuria. Polyuria, what is polyuria? Poly means when we have abnormally high volume of urine excretion. When we have abnormally high volume of urine excretion, we call it polyuria. And oliguria is just reverse of it. ओलिगोयूरिया जब हमारे पास एक एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ यूरिन एक्सक्रीट होता है हमारे बॉडी से, विच इज अराउंड 3500 ml, जो कि अराउंड कितना होता है 3500 ml। अगर इतना यूरिन हम एक दिन में एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं तो इसका मतलब वी हैव पॉलीयूरिया। दिस इज अ कंडीशन। ओलिगोयूरिया क्या है? ओलिगोयूरिया इज जस्ट रिवर्स ऑफ इट। ओलिगोयूरिया इज जस्ट रिवर्स ऑफ इट, यानी कि इसका जस्ट उल्टा है, अपोजिट है। दैट इज एबनॉर्मली हाई की जगह आप लो समझ लीजिए, लो वॉल्यूम, एबनॉर्मली लो वॉल्यूम ऑफ यूरिन एक्सक्रीशन, ठीक है, जो कि कितना होता है 500 ml से भी कम। यानी कि अगर 500 ml से भी कम हो रहा है तो आपको कौन सी सिचुएशन है? ओलिगोयूरिया। और अगर 3500 ml से भी ज़्यादा हो रहा है तो वी हैव पॉलीयूरिया, वी कॉल इट पॉलीयूरिया। अब नेक्स्ट है डायूरेसिस। व्हाट इज डायूरेसिस? डायूरेसिस क्या है? डायूरेसिस इज नेट लॉस, दिस इज नेट लॉस ऑफ वाटर। जब भी क्या होता है पानी का लॉस होता है, हमारी बॉडी से पानी का लॉस होता है, किस चीज़ के फॉर्म में होगा? इन फॉर्म ऑफ यूरिन। किसके फॉर्म में होगा? यूरिन के फॉर्म में पानी का अगर लॉस होता है वी कॉल इट डायूरेसिस, ठीक है। नाइट्रियूरेसिस क्या है? इट इज नेट लॉस ऑफ सोडियम इन यूरिन। यूरिन में सोडियम का नेट लॉस होना क्या होता है? नाइट्रियूरेसिस कहलाता है। कैल्सियूरेसिस यानी कि नेट लॉस, सेम यही चीज़ है, अब उसमें क्या है? कैल्शियम का लॉस होना इन यूरिन, ठीक है, लॉस ऑफ कैल्शियम इन यूरिन। सेम चीज़ है मैग्नीशियम के साथ, ठीक है, सेम चीज़ है कार्बोयूरिया, दैट इज बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है, सेम। और ऐसे बहुत सारे हैं, फॉर एग्जांपल पोटेशियम ले लेंगे, है ना, पोटेशियम का भी लॉस होता है इसमें। एंड फर्दर मोर इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत सारे होते हैं, मैं ऐसे सारा मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम राइटिंग हियर जो भी हैं, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू टर्म्स वी शुड कीप इन आवर माइंड कि भाई ये चीज़ ज़रूरी है हमको ये चैप्टर समझने के लिए। नेक्स्ट वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस हियर कि भाई सारा तो देख लिए लेकिन डाईयूरेटिक्स नहीं देखा। डाईयूरेटिक्स जो पूरा चैप्टर का नाम ही है यही नहीं देखा। तो डाईयूरेटिक्स क्या है? डाईयूरेटिक्स आर एजेंट, ये वो एजेंट हैं विच promote net loss of sodium and water, which promote net loss of sodium in water in form of urine के फॉर्म में, ठीक है। तो भैया ऐसे एजेंट, ऐसे ड्रग्स, ऐसे सब्सटेंसेस विच प्रमोट, यानी कि जो क्या करेंगे? बढ़ावा देंगे, प्रमोट द एक्सक्रीशन ऑफ किसका? सोडियम एंड वाटर इन फॉर्म ऑफ यूरिन। ओके, सो वी हैव कवर्ड द डेफिनेशन पार्ट। नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्लासिफिकेशन। बहुत शॉर्ट, बहुत सिंपल में लेके चल रहे हैं सो दैट आप इसको इजीली समझ पाएँ, कम समय में ज़्यादा चीज़ ग्रैब कर पाएँ। एंड अपने जो भी एग्ज़ाम हो, बी फार्म हो, डी फार्म हो, आप कोई ग्रेड कर रहे हैं, मेडिकल किसी भी लेवल पे आप कर रहे हैं, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, नेक्स्ट, बिकॉज ये चैप्टर इज समथिंग लाइक वेरी ट्रिकी फॉर न्यू पीपल, कि जो भी लोग नए आते हैं, नए इस फार्माकोलॉजी की बुक उठाते हैं, उनको एकदम से डायूरेटिक्स दिख जाता है, इट बिकम्स वेरी ट्रिकी फॉर यू कि कहाँ से शुरू करें और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। सो आई एम कवरिंग ओनली द इम्पॉर्टेंट पोर्सन, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ से कॉम्पिटिटिव एज वेल एज जो आपके थ्योरी पोर्सन है वो सारे इसमें क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। बिना टाइम वेस्ट करते आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ये क्लासिफिकेशन इफिकेसी के बेसिस पे है कि कितनी इफिकेसी है। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इफिकेसी और यू कैन से मॉडरेसी, ठीक है। तो पहला है हाई, दूसरा है मीडियम और तीसरा है वीक।
ठीक है, इन्हीं 3 चीज़ों पे बात होगी। हाई में क्या होते हैं, हाई वाले होते हैं लूप डायरेटिक्स, मीडियम वाले होते हैं थायाजाइड्स एंड थायाजाइड लाइक, वीक में 3 आते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले सबसे पहले लूप डायरेटिक्स देख लेते हैं। लूप डायरेटिक्स वी हैव FB, फेसबुक, FB यानी कि फ्रूसेमाइड एंड ब्यूमेटानाइड। दो एग्जांपल लर्न करना है तो दो एग्जांपल हम मेंशन करते चलेंगे। FB लर्न हम ऐसे अगर करना चाहें तो सारे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रूसेमाइड, ब्यूमेटानाइड, टॉर्सेमाइड एंड इथाक्राइनिक एसिड। ठीक है, इथाक्राइनिक एसिड अब बहुत ज्यादा यूज में नहीं लेते हैं, मेनली वी यूज फ्रूसेमाइड। मीडियम एफिकेसी डायूरेटिक्स, इसमें आते हैं थायाजाइड्स एंड थायाजाइड लाइक। थायाजाइड में आप लर्न कर सकते हैं वेरी इजीली हाइड्रोक्लोरथायाजाइड एंड बेंजथायाजाइड। इन थायाजाइड लाइक वी हैव अ ट्रिक फॉर थायाजाइड लाइक, जो कि मैंने अपने टाइम पे बनाई थी। दिस इज CCIMX, CCIMX, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि भाई CCMIX। ठीक है, कि भैया देखो देखो MI कभी नहीं जीतेगी। ठीक है, ऐसा हम लोग बनाते थे, ऐसा नहीं है, मैं खुद मुंबई इंडियन का सपोर्टर हूं तो MI हमेशा जीतती है। खैर CCMI नेवर विंस, यानी कि CCMIX या CCIMX। ठीक है, अब इसमें क्या है, दिस इज क्लोरथालिडोन, दिस इज क्लोपामाइड, दिस इज इंडापामाइड, दिस इज मेटाजोलोन एंड दिस इज जिपामाइड। ऑल आर मेंशन हियर। यहाँ पे मेटाजोलोन नहीं मेंशन है, उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूं मेटाजोलोन। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट ड्रग। लास्ट हम पढ़ते हैं वीक डायरेटिक्स। वीक डायरेटिक्स फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, इसमें एक एग्जांपल हमको लर्न करना है एसीटाजोलामाइड। बाकी के जो इसके एग्जांपल्स हैं वो भी हैं, बट वो हम ग्लाउकोमा में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है। पोटेशियम, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स, दीज आर एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट एंड इनहिबिटर ऑफ सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन पोटेशियम सिक्रेशन। ठीक है, इसमें स्पाइरेनोलैक्टोन एंड एप्लेरानोन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके थ्योरी एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जीपैट, नाइपर, आप नीट पीजी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, दिस एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स में आप मैनिटॉल, आइसोसॉर्बाइड, ग्लिसरॉल, यूरिया, ये सारे ड्रग्स याद कर सकते हैं। दिस वेर, सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एफिकेसी। ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे था, एफिकेसी के बेसिस पे था। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे कि भाई किस जगह पे काम कर रही है। अगर हमारा जो हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा कि इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में ये जो नन्ना मुन्ना सा नेफ्रॉन है, क्या है, नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन के किस एरिया, किस जगह पे काम कर रही है। एक बार हम फिर से इसको दोहरा लेते हैं, यानी कि रिवाइज कर लेते हैं कि कौन सा जगह का नाम क्या है। ठीक है, तो ये यहां से दिस वाज बोमेंस कैप्सूल, है ना, यहाँ पे ग्लोमेरुलस था, यहां से क्या होता है, दिस फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, देन द मेन पोर्शन यहाँ पे क्या था, पीसीटी, पीसीटी था। पीसीटी के बाद हमारे पास ये क्या था, ये जो रीजन था, दिस इज लूप। लूप मीन्स यहाँ पे क्या है, दिस इज डिसेंडिंग, दिस इज डिसेंडिंग एंड दिस इज असेंडिंग। ठीक है, दिस इज डिसेंडिंग एंड दिस इज असेंडिंग। फिर यहाँ पे क्या है, दिस इज डीसीटी, ये पोर्शन दिस इज डीसीटी एंड दिस लास्ट पोर्शन इज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे नीचे, लेकिन उससे पहले हम ये क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्शन। ठीक है, तो पहला जो पीसीटी पे काम करते हैं, जो इस रीजन पे काम करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो काम करते हैं, ये कौन है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। कौन है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स कहाँ काम करते हैं, पीसीटी पे काम करते हैं। अच्छा, पीसीटी का पूरा फुल फॉर्म क्या है, दिस इज प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल्स, दिस इज प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल्स। और इसी का साथ आप इसको भी लर्न कर लीजिए, डीसीटी का होता है डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल्स। ठीक है, एंड पीसीटी पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे कौन काम करेंगे, लूप डायरेटिक्स। भाई लूप है तो लूप डायरेटिक्स काम करेंगे। ठीक है, डीसीटी, डीसीटी पे कौन काम करेगा भाई, डीसीटी पे तो थायाजाइड्स काम करेगा। थायाजाइड्स में दो एग्जांपल हमने याद किए थे, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड और बेंजथायाजाइड। ठीक है, सीसीटी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, यानी कौन से इसके एग्जांपल थे, बोलते जाओ मेरे साथ, कौन से एग्जांपल थे, स्पाइरेनोलैक्टोन और एप्लेरानोन। वेरी नाइस। फिर आते हैं ड्रग्स दैट मॉडिफाई वाटर एक्सक्रीशन, कि भाई वाटर एक्सक्रीशन ज्यादा कराना है, कम कराना है, कौन कराएंगे, ऑस्मेटिक डायरेटिक्स। तो ये तो दोनों जगह काम आते हैं। एंड लर्न ऑस्मेटिक डायरेटिक्स कहाँ काम आते हैं, बिफोर पीसीटी, है ना, एट द
बिफोर पीसीटी, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लर्न कर ले सकते हैं, है ना। तो एक इसका लिए भी ट्रिक है, वी आर हियर विथ ट्रिक ऑल्सो, MALT, MALT, सो दिस इज M मीन्स यहाँ पे कौन है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, M मीन्स वी हैव मैनीटॉल, M मीन्स मैनीटॉल, M मीन्स मैनीटॉल, देन वी हैव पीसीटी, पीसीटी पे कौन है, M सबसे पहला बिफोर पीसीटी, है ना। A मीन्स एसिटाजोलामाइड, A मीन्स एसिटाजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड यहाँ लिख देते हैं, एसिटाजोलामाइड, ठीक है। एसिटाजोलामाइड कहाँ काम कर रहा है, पीसीटी पे, ये पीसीटी से भी पहले, ठीक है। और लूप डायरेटिक्स, फिर आते हैं लूप, ये वाले, ये हो गए लूप, तो लूप पे आते हैं तो ये लूप पे काम करते हैं। देन वी हैव यहाँ पे थायाजाइड्स, यहाँ पे कौन काम करता है, थायाजाइड। देखिए सब क्लियर है, यहाँ पे पीसीटी से पहले कौन है, मैनीटॉल है, यहाँ पे पीसीटी पर कौन काम कर रहा है, एसिटाजोलामाइड, यहाँ पे डिसेंडिंग पे और असेंडिंग लूप पे कौन काम कर रहा है, आपकी लूप डायरेटिक्स, ठीक है। और लास्ट में थायाजाइड्स, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में हमारी कौन आती हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग, ठीक है ना। तो माल्ट के याद करेंगे, ट्रिक क्या है, माल्ट के, ये एकदम असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है कि हाँ भैया ऐसे ऐसे काम होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सीटीपी स्पेरिन। और ड्रग्स दैट मॉडिफाई वाटर एक्सक्रीशन, वाटर एक्सक्रीशन कौन कौन मॉडिफाई कर रहा है, एडीएच एगोनिस्ट एंड एटीएच एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट में भाई क्या नाम रखेंगे, डेस्मोप्रेसिन, बहुत इंपॉर्टेंट है डेस्मोप्रेसिन। एंड एंटागोनिस्ट में क्विनिविप्टैन, क्या याद करेंगे, क्विनिविप्टैन, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। खैर आइए एक बार और देख लेते हैं। दिस इज ग्लोमेरुलस, एक अच्छा डायग्राम, ये हमारा क्या है, ग्लोमेरुलस है। दूसरा ये जो पोर्शन है, ये रुको रुको रुको, इसको अच्छे से दिखा देते हैं भाई, कौन सा पोर्शन है ये, बोमेंस कैप्सूल, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन आ रहा है ना, ये जो गोला सा, ये दिस इज बोमेंस कैप्सूल। देन हमारे पास है पीसीटी, देन वी हैव पीसीटी। अच्छा पीसीटी यहाँ पे है, पीसीटी पे कौन काम करता था भाई, याद है ना, माल्ट के, तो एम कहाँ पे काम किया, इसके पहले, दिस इज एम, यहाँ पे बाद में भी लिखा है, देखो मैनिटोल क्या है, ऑस्मोटिक डायरेटिक, ऑस्मोटिक देखो हर जगह चलती रहती है ज्यादातर, ठीक है, तो इसका कोई एक जगह फिक्स नहीं है, तो आप इसको पहले याद कर सकते हो मैनिटोल, चाहो तो बाद में भी लर्न कर सकते हो, देखो मैनिटोल यहाँ भी मेंशन है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट वी हैव मैनिटोल, देन वी हैव पीसीटी पे कौन काम कर रहा है, एसिटाजोलामाइड, हमारे यहाँ मेंशन है ए, देन वी हैव लूप, देखो मैनिटोल यहाँ पे भी आ गया, देखो यहाँ पे भी, तो चलती रहती है इनकी, ठीक है। और लूप, तो मैनिटोल को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्या है, एसिटाजोलामाइड हमने देख लिया। एल से क्या है, लूप डायरेटिक्स, लूप डायरेटिक्स कहाँ काम करती है भाई, लूप डायरेटिक्स वर्क ऑन लूप, ठीक है, लूप हैनले कहाँ पे करती है, लूप ऑफ हैनले। देन वी हैव टी मीन्स थायराइड, थायराइड फिर आगे भाई, आगे थायराइड्स हो गई, ठीक है। थायराइड्स कहाँ काम करती हैं, डीसीटी, ये कहाँ थी, पीसीटी, ठीक है। और इसको चाहे तो तुम कह दो पीसीटी के पहले भी, पीसीटी के बाद भी, है ना, क्योंकि डायग्राम में मेंशन है इसलिए बता दिया। और वैसे इसको कहाँ पे हम हमेशा लिखेंगे कि मैनिटोल वर्क्स ऑन बिफोर पीसीटी, है ना, अर्ली रीजन ऑफ पीसीटी, ठीक है। एंड दिस इज पोटेशियम, पोटेशियम कहाँ काम करती है, एट सीटी, यानी कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ठीक है। सारा चीज आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हाँ भाई क्लासिफिकेशन में क्या लिखना है। अब बता देता हूँ उसमें कैसे लिखना है। पहला क्लासिफिकेशन ये डाल देंगे हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एफिकेसी, और ये सारे ड्रग्स का दो एग्जाम्पल लिखते हुए, इनका दो एग्जाम्पल लिखते हुए इस क्लासिफिकेशन को मेंशन कर देंगे। दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द साइट ऑफ एक्शन, इसको चाहे आप लिखो ना लिखो, थ्योरी में आप चाहो तो फर्स्ट वाला ही मेंशन कर सकते हो, बट इनका याद रखना जरूरी है फॉर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ओके, नेक्स्ट थिंग वी हैव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से पहले आपको कॉन्सेंट्रेशन बता देते हैं, है ना। दिस वाज ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, हमारा पीसीटी, दिस इज यहाँ से कि यहाँ तक लूप, ये क्या हो गया, डीसीटी, यहाँ से यहाँ, दिस इज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो भाई ये क्या है, दिस इज आइसो, आइसो मतलब यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है। ये क्या है, आइसो हाइपर, यानी कि क्या होता है, क्योंकि यहाँ से हाइपर ऑस्मोटिक हो जाते हैं, ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाते हैं, हाइपो ऑस्मोटिक, ठीक है। ये आगे हम समझाएंगे ये कैसे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाइपर और यहाँ पे हाइपो, ठीक है। और आगे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम का कुछ रोल है, इसको भी आगे बताएंगे थायराइड्स वाले में,
एंड देन लास्ट में हमारे पास ADH है। ये हमने एक बार देख लिया, एक बार फिर से बता दिया, ठीक है। ये हॉर्मोन्स और नेफ्रॉन्स का कुछ इसमें रोल है। खैर इसमें हम ज़्यादा नहीं घुसेंगे क्योंकि इसको पहले ही बता चुके हैं हम, है ना। एक चीज़ है, हम बस इतना बताएंगे कि यहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 का रोल होता है इस जगह पे, इनके रिसेप्टर्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ें मेंशन है, ग्लोमेरुलस हो गया, ठीक है। PCT यहाँ पे है, PCT पे कौन सी, चलिए इसी के साथ में एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कौन सी ड्रग्स कहाँ पे काम कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल PCT पे कौन सी काम कर रही थी भाई, बोल 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 भाई बोल, क्या काम कर रही थी इस पे, PCT पे काम कर रही थी एसिटाजोलामाइड, यानी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्बो यहाँ पे कौन काम कर रही थी, फटाक से बोलना, इस पे काम कर रही थी लूप डायूरेटिक्स, कौन काम कर रही थी, लूप डायूरेटिक्स। फिर डिस्टल, डिस्टल पे कौन काम कर रही थी, थायाजाइड्स, डिस्टल पे थायाजाइड्स काम कर रही थी क्या, ठीक है। थायाजाइड्स एंड थायाजाइड लाइक भी कह सकते हैं, CCIMX, ओके। देन वी हैव फिफ्थ एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, कौन सी थी, इस ये कहां पे काम करती हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे क्या था, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट स्पाइरेनोलैक्टोन, स्पाइरेनोलैक्टोन एंड एप्लेरेनोन, ठीक है। ये हो गई। अब यहां पे देखो, मेनली ये बताना था कि यहाँ पे देखो एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स भी होती हैं, क्या नाम है, बोल दे भाई, वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन। इनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ बताने से कोई फायदा नहीं है। चलो, अब ये एक थ्योरी पोर्शन के लिए है कि जिन जो लोग थ्योरी एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये पोर्शन है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि हम समझ तो लेते हैं लेकिन कॉपी में कैसे लिखना है ये चीज़ हमको नहीं पता होती है। जब हम अपने एग्जाम्स लिखते थे तो हमें भी ये प्रॉब्लम आती थी कि समझ तो लिया लेकिन इतने शॉर्ट बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं 7-7 10-10 नंबर के, तो हम उसमें कैसे ये 2 लाइन का आंसर लिख के चले आए, तो कैसे उसको मैंशन करना है, हाउ टू पुट इट ईजिली एंड एफिशिएंटली इन द कॉपी सो दैट द एग्जामिनर गेट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्वे। ओके, पहले क्या होता है, पहले यहाँ पे हम इसको समझेंगे, देन वी विल कम टू नो कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। ओके, चलो सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। दिस इज हमारा ये है ओके, ये हो गया हमारा नेफ्रॉन, ये एक नेफ्रॉन है हमारा। ये क्या है, ये समझ लीजिए यहाँ से ये हमारा क्या है, हार्ट है, ठीक है। दिस इज आवर हार्ट, और हार्ट से हमारे क्या आती है, ये सप्लाई आती है, सप्लाई सबको पता है क्या होती है, ठीक है। एंड देन ये सप्लाई क्या होती है, कनेक्टेड होती है पूरे बॉडी से, ठीक है। इसको मैं बना लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये हार्ट है और ये हमारा, इसको क्या कहते हैं भाई, लिख लेते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम है जहाँ से ब्लड क्या है, फ्लो करता रहता है, पूरे बॉडी में जाता है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ब्लड पूरे बॉडी से होते हुए जब नेफ्रॉन में जाता है तो क्या होता है। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि भाई यहाँ से कितना ब्लड चलता है, 5 लीटर, यहाँ पे कितना पहुँचता है, 20% यानी कि 1 लीटर, और इस 1 लीटर में 40 और 60% का क्राइटेरिया होता है, ठीक है। और 40 में 60% मतलब कितने हो गए, 600 ml। अब इस 600 ml से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है, यानी कि हमारे ग्लोमेरुलर से कितना फिल्ट्रेट होके आएगा, दिस इज 120 ml, ठीक है। 120 ml ही आता है मात्र, और इस 120 ml से भी जो फिल्टर हो गए यूरिन बनता है 1 मिनट में, ठीक है, वो कितना है, दिस इज अराउंड 1.2 ml, ठीक है। यानी कि अगर आप 100 ml आपके अगर फिल्टर होता है तो आप कितना फिल्टर आउट करेंगे, 1 ml, ओके। अब ये फिल्टर आउट होने के बाद सबसे पहले क्या होता है, जब ये फिल्टर आउट होते हैं यहाँ पे बहुत सारी सेल्स होती हैं, है ना, दीज आर द सेल्स, बहुत सारी सेल्स होती हैं। यहाँ पे क्या था, दिस इज और PCT, दिस इज और PCT। यहाँ से फिर क्या होती है, अब यहाँ पे जिन भी चीज़ों को इलेक्ट्रोलाइट्स की हमको ज़रूरत होती है वो तो यहाँ पे रहती हैं, जिनकी कमी होती है वो वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। दीज वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं। इस तरफ से भी होती हैं, मैंने यहाँ दिखाया नहीं है बट आप ऐसा इमेजिन करो कि यहाँ पे भी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। फिर यहाँ से वापस से आगे जब बढ़ते हैं हम नीचे की तरफ,
तो और देखते हैं कि जैसे कि नीचे आते हैं, तो ये एरिया जो होता है ये हाइपर, दिस इज हाइपर, एंड आप इसको लर्न कर सकते हो हाइपो, ठीक है, दिस इज हाइपो रीजन। हाइपर ऑस्मोटिक इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां से जब आती है तो दिस इज टोटली इम्परमिएबल, ठीक है। यहां से क्या होता है, यहां से वाटर का लॉस आसानी से हो सकता है, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, डाइल्यूशन, सॉरी, यहां से ये इसको, इस रीजन को बेसिकली हम कहते हैं हाइपर रीजन, एंड दिस रीजन इज नोन एज हाइपो रीजन। इसको हम आपको आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे इस चीज को लेके, ठीक है। देन दिस इज हाइपर एंड दिस इज हाइपो, एंड दिस रीजन, बेसिकली दिस रीजन क्या था, दिस इज पीसीटी, दिस इज लूप, ठीक है, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। देन हम यहाँ पे देखते हैं दिस पोर्शन, यहाँ से लेके, ठीक है, ये पोर्शन, इसको थोड़ा अलग डिजाइन से बना देते हैं सो दैट आप इसको समझ जाएं, ठीक है। दिस पोर्शन, दिस वाज व्हाट वी हैव, दिस वाज डीसीटी, DCT, एंड देन वी हैव, इसको और ऐसे बना देते हैं ना, ठीक है, दिस इज और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ठीक है, दिस इज और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। तो बेसिकली बताया क्या इसमें कि कितना वॉल्यूम हम इसमें रिसीव करते हैं और कितना हम आउटपुट देते हैं। ये इसमें जो एरिया है इसमें कितना परसेंट, सॉरी जैसे यहाँ पे भी हम लिख दें 20%। सो आप इस चीज़ों को देखेंगे। अब इसको लिखना कैसे है ये आप इजीली समझ जाएंगे, क्योंकि अब इसको आपने एक बार देख लिया है। सर्कुलेटरी सिस्टम ये था, सर्कुलेटरी सिस्टम से 5 ml ब्लड आया, ब्लड में से 20% यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, है ना, ट्रांसफर इन द किडनी। 1 लीटर ब्लड यानी कि 20%, 5 लीटर कितना हुआ, 1 लीटर हो गया। अब इस 1 लीटर में से 60-40 का रेशियो होता है। 60 क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, एंड दिस इज प्लाज्मा, एंड इस प्लाज्मा में से 600 ml यानी कि 60% कितना हुआ, 600 ml, 120 ml यहाँ पे सिक्रीट हुआ इसके अंदर, और बाकी जो इसमें है 99% क्या होती हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, 99% रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, एंड सिर्फ 1% यानी कि व्हाट वी रिसीव इज 1% ऑफ यूरिन। दिस इज और दिस इज नॉट आवर्स बट दिस इज यूरिन, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग कि अब यहाँ से स्टोरी है, आप इसको स्टोरी की तरह समझ जाओगे। अब बाकी जितनी चीज़ें हैं आप इसको थियरी में लर्न करना चाहें तो लर्न भी कर सकते हैं, ये इजी होगा अब लर्न करना, क्योंकि आप उसके प्रोसेस को समझ चुके हैं। एज द ब्लड फ्लोज थ्रू द किडनी इट पासेस द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज लोकेटेड विद इन द कॉर्टेक्स, ठीक है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को पास करती हैं जो कि कॉर्टेक्स में लोकेटेड है ना। दिस ग्लोमेरुलर कैपिलरीज आर हाईली परमिएबल, ये क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा परमिएबल होती हैं टू वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। अब इसमें से आपने देखा कि किस चीज को ये एंटर कराने देती हैं, यहां से क्या आता है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में डिफरेंट होती हैं, वो सोडियम हो सकती है, वो पोटेशियम हो सकती हैं, वो क्लोराइड्स हो सकती हैं, ठीक है, बाइकार्बोनेट्स हो सकती हैं, ठीक है, ओके। सो देन वी हैव हाईली परमिएबल पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, अच्छा क्यों ये अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होता है। इस प्रेशर का नाम क्या है, कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है। कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के थ्रू ये क्या होती हैं, फिल्टर हो जाती हैं, है ना। क्या फिल्टर होती है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इनटू द बोमेंस स्पेस, बोमेंस स्पेस यानी कि बोमेंस कैप्सूल, एंड इनटू द पीसीटी, और फिर वहां से पीसीटी की तरफ बढ़ने लगती हैं। अबाउट 20%, जैसे कि हमने देखा, अबाउट 20% ऑफ द प्लाज्मा एंटर्स द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड इज फिल्टर्ड, ठीक है। यहां से कितनी आती हैं, 20%, ठीक है, 20% प्लाज्मा, ठीक है, ब्लड नहीं, ब्लड तो 5 ml पूरा चलता है पूरे बॉडी का, ठीक है। 5 ml ब्लड 1 मिनट में हार्ट क्या करता है, पंप करता है, ठीक है। हार्ट 1 मिनट में कितना पंप करता है, 5 ml, ठीक है। अब इस 5 ml में से 20% ही जाता है, और 20% का 60% प्लाज्मा ही ये क्या होता है, यहां से एब्जॉर्ब होता है, यानी कि फिल्टर होता है, ठीक है, ये बता दिया। अब पीसीटी, आगे जब यहां से बढ़ गया पीसीटी के पास, तो क्या रोल है पीसीटी, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, ये थ्योरी वाले बच्चों के लिए। अगर आप थ्योरी वाले बच्चे नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, आप इसको स्किप कर सकते हैं आगे, ठीक है। एज ये वीडियो के इवन पोर्शन में भी आ जाएगा कि आप कहां तक स्किप करेंगे कि आपको नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट जो पार्ट है वो आप उसको विटनेस कर पाएंगे, देख पाएंगे, ठीक है।
इफ यू डोंट लाइक द थ्योरी पोर्शन आप इसको स्किप कर सकते हैं। द पीसीटी विच लाइज विद इन द कॉर्टेक्स इज द साइट ऑफ सोडियम वाटर एंड बाइकार्बोनेट। पीसीटी पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली हम सोडियम वाटर बाइकार्बोनेट के जो ट्रांसपोर्ट है और उसके फिल्ट्रेशन को टारगेट करते हैं, ठीक है, अक्रॉस द ट्यूब्यूलर वॉल एंड इनटू द इंटरस्टिशियम ऑफ द कॉर्टेक्स। ठीक है, ये आप ऐसे हूबहू लिख सकते हैं कि भाई पीसीटी में क्या होता है, पीसीटी में एक रीजन है ना, जहां पे ट्रांसपोर्टर होता है जो ट्रांसपोर्ट क्या करता है, सोडियम वाटर और सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड्स, इन तीनों को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो अब इनका क्या है, तो इनका बैलेंसिंग कहां पे डिपेंड हुआ, ठीक है, बैलेंसिंग जो है सो हम पढ़ने जा रहे हैं पीसीटी। पीसीटी में क्या है कि पीसीटी विच लाइज विद इन द कॉर्टेक्स, पीसीटी कहां होता है, कॉर्टेक्स में होता है, इज द साइट ऑफ सोडियम वाटर बाइकार्बोनेट। पीसीटी क्या है, द साइट फॉर सोडियम वाटर बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द फिल्ट्रेट, ठीक है, अक्रॉस द ट्यूबुलर वॉल एंड इनटू द इंटरस्टिशियम। पीसीटी में क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, सोडियम को, बाइकार्बोनेट को। तो ये बेसिकली अगर इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इनका रीअब्जॉर्प्शन यहाँ से हो रहा है, तो ये इनको क्या करेंगे, बैलेंस भी करेंगे हमारी बॉडी में इनके लेवल को। ठीक है, अबाउट 60 to 70% of the filtered sodium is removed from urine found within the PCT। 60 to 70% इसका मेजर पोर्शन है सोडियम का, कहां से रिमूव होता है, पीसीटी से रिमूव होता है। दिस टर्म ऑफ सोडियम, दिस इज टर्म्ड एज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। यहां से क्या हो रहा है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन, जो हमने यहां बताया कि ये क्या होते हैं, रीअब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, यहां से क्या होते हैं, रीअब्जॉर्ब होते हैं। जैसे सोडियम की कमी हो गई बॉडी में, तो ये यहां से वापस से क्या होते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस सोडियम इज रीअब्सॉर्ब्ड आइसोऑस्मोटिकली, मीनिंग दैट एवरी मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम दैट इज रीअब्सॉर्ब्ड इज अकम्पनीड बाय वाटर, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, कि जो भी सोडियम है ना, जो भी हमारे ईच एंड एवरी सोडियम जो मॉलिक्यूल है सोडियम का, वो क्या हो जाता है, रीअब्सॉर्ब हो जाता है अकम्पनीड बाय वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि उस वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, एज द वाटर ट्यूब्यूल डाइव्स इनटू द मेडुला, जब यहां से मेडुलर पार्ट में जाते हैं, हम थोड़ा और नीचे जाते हैं, इन द मिडिल जोन है ना किडनी के, द ट्यूब्यूल बिकम्स नैरोअर। यहाँ पे ट्यूब्यूल क्या होती है, नैरोअर हो जाती है ना। अब जैसे यहाँ पे ये थोड़ी सी जब जाते जाते यहाँ पे क्या होती है, नैरो हो जाती है, दिस बिकम्स नैरो। ठीक है, नैरो होने के बाद जैसे क्या सीन है ना, ये कहानी है। नैरो होने के बाद क्या है ना, एंड फॉर्म्स लूप, क्या बना लेती है, लूप्स बना लेती है। नैरो होने के बाद ऐसे ही करके ये लूप बना लेती है, और लूप में क्या था, दिस वाज डिसेंडिंग एंड दिस वाज असेंडिंग। ठीक है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्म्स द लूप एंड री इंटर्स द कॉर्टेक्स एज थिक असेंडिंग लूप ऑफ, है ना, और फिर वापस से कॉर्टेक्स में एंटर करती है एज थिक असेंडिंग लूप, यानी कि दिस इज TAL। ठीक है, इसके ऊपर का पोर्शन। ठीक है, दैट ट्रेवल्स बैक नियर टू द ग्लोमेरुलस, जो कि वापस से ग्लोमेरुलस के पास पहुंचा देता है। ठीक है, जो कि वापस से ग्लोमेरुलस के पास। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि भाई यहां से वह थिक असेंडिंग लिम्फ के जैसे पहुंचते हैं, फिर यहां से वापस से क्या हो गया, देखो ये पोर्शन था ग्लोमेरुलस का, और वापस ये यहीं पे पहुंचा देते हैं, यानी कि यहां पे। ठीक है, ओके नेक्स्ट, बिकॉज द इंटरस्टिशियम ऑफ मेडुला इज वेरी हाइपर ऑस्मोटिक। जो इंटरस्टिशियम है मेडुला का, वो क्या है, हाइपर ऑस्मोटिक। हमने बताया था कि भाई ये रीजन क्या है, दिस रीजन क्या था, हाइपर, ठीक है, एंड दिस रीजन वाज हाइपो। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये कॉन्सेप्ट मैंने उस टाइम नहीं बताया था, अब यहाँ पे बता देते हैं, क्योंकि बिकॉज द इंटरस्टिशियम ऑफ मेडुला इज वेरी हाइपर ऑस्मोटिक, द लूप ऑफ हैंडले बिकम्स परमिएबल टू वाटर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, वाटर से परमिएबल हो जाएगा। अब वाटर से परमिएबल हो जाएगा तो क्या होगा, यानी कि यहाँ से क्या होगा, वाटर का लॉस होगा। वाटर का लॉस होगा तो यहाँ का जो भी मटेरियल है, जो भी हमारी फिल्ट्रेट्स हैं, ये क्या होंगी, ये होंगी कॉन्सनट्रेटेड। क्या होंगी, कॉन्सनट्रेटेड। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लॉस नहीं होता। ठीक है, और अगर यहाँ पे लॉस नहीं होता तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, डाइल्यूट। ठीक है, अच्छा क्लियर है। वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द लूप ऑफ हैंडले एंड इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ठीक है, ये परमिएबल हो गई। ठीक है, तो वाटर क्या होती है, रीअब्सॉर्ब होती है। रीअब्सॉर्ब होगा तो क्या होगा, वहां पे वो चीजें कॉन्सेंट्रेटेड होंगी, क्योंकि कोई भी चीज अगर पानी निकाल दो, किसी में पानी मिला होगा तो डाइल्यूट होगा। अगर पानी हम निकाल दें, वाटर रीअब्सॉर्ब हो गया, तो क्या हो गई, वहां की चीजें कॉन्सेंट्रेटेड हो गई। ठीक है,
दिस लॉस ऑफ वाटर कॉन्सेंट्रेट्स द यूरिन, तो वहां की यूरिन क्या हो गई, कॉन्सेंट्रेट हो गई, देन विद इन द लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो ये हमने बता दिया कि यहाँ पे हाइपर है, आप याद रखेंगे, है ना, हाइपर है तो कॉन्सेंट्रेटेड एंड हाइपो है तो डाइल्यूट। ठीक है, लास्ट में आता है डीसीटी। लास्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके बाद बाकी जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। फ्रॉम द थिक असेंडिंग लिम्ब द यूरिन फ्लोज टू द डिस्टल कॉर्नेटरी ट्यूब्यूल। अब थिक असेंडिंग लिम्ब से थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो डीसीटी आता है। वो डीसीटी का जो रीजन है, ये डीसीटी का रीजन है, दिस इज आवर डीसीटी रीजन। ठीक है, दिस इज आवर डीसीटी रीजन। अब डीसीटी है तो यहां से क्या होगा, इस रीजन में क्या होगा, अब यूरिन यहां पे आ चुका है। ठीक है, यहां पे आने के बाद क्या होता है, यहां पे सिर्फ नेट कितना होता है, 5%, है ना, 5% सोडियम का जो रीअब्जॉर्प्शन है वही हो सकता है। ठीक है, सो फ्रॉम द TAL आप इसको ऐसे लिख भी सकते हैं कि भाई डीसीटी में अगर आ गया, या फिर थायराइड्स के लिए अगर क्वेश्चन आ गया तो आप ये भी लिख सकते हैं, फ्रॉम द थिक असेंडिंग लिम्ब द यूरिन फ्लोज इनटू डिस्टल कॉर्नेटरी ट्यूब्यूल व्हिच इज अनदर साइट ऑफ सोडियम ट्रांसपोर्ट, है ना, 5% वाया सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। यहाँ पे एक को ट्रांसपोर्टर होता है, वो कौन से किसको ट्रांसपोर्ट करता है, इस ट्रांसपोर्ट सोडियम एज वेल एज क्लोराइड्स, को ट्रांसपोर्टर। ठीक है, इनटू द कॉर्टिकल इंटरस्टिशियम। अच्छा, को ट्रांसपोर्टर क्या होते हैं, यहाँ पे को ट्रांसपोर्टर का मतलब है जो एक साथ ही दोनों को ट्रांसपोर्ट कर दे। ठीक है, वैसे क्या होते हैं, एक्सचेंज वाले होते हैं, है ना, एंटीपोर्ट, है ना, एक होते हैं सिमपोर्ट, है ना, और एक ये इनको ही कहते हैं को ट्रांसपोर्टर। ठीक है, ओके। द डीसीटी इज ऑल्सो इम्परमीबल टू वाटर। डीसीटी भी क्या है, पानी से इम्परमीबल है, यानी कि इसमें वाटर लॉस नहीं होगा। वाटर लॉस जो है, वाटर लॉस नहीं होगा, वाटर लॉस इसमें नहीं होगा। ठीक है, इसको रेड से मार्क कर देते हैं कि वाटर लॉस इसमें नहीं होगा। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर नहीं होगा, तो वाटर क्या है, साइड है। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर नहीं होगा। फाइनली द ट्यूब्यूल डाइव्स बैक इनटू द मेडुला। फिर से ट्यूब्यूल जो है आगे पोर्शन बढ़ेगा, यानी मेडुला में फिर से डाइव करेगा, तो दिस पोर्शन इज नोन एज मेडुलरी, यानी कि अब ये लास्ट पोर्शन है, दिस इज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है, इसके नीचे था मेडुला, ये था कॉर्टेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे फिर क्या था, एक बार फिर से इसको दूसरे से बना देते हैं। दिस वाज और क्या था, ये दिस वाज लूप, ये क्या था, ये असेंडिंग था और ये डिसेंडिंग था। इसके पहले क्या था, इसके पहले क्या था, बोल भाई, इसके पहले था पीसीटी और इसके पहले था ये क्या था, वुमेन्स कैप्सूल, और ये क्या था, ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये था पीसीटी। तो आई थिंक अब थोड़ा बहुत पिक्चर क्लियर होगी कि हाँ कौन सा पोर्शन है, क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ पे काम करेगी। अब अगर हम इन पे ही अलग अलग पोर्शन पे अलग अलग ड्रग्स अप्लाई करेंगे और अलग अलग पोर्शन से लॉस ऑफ सोडियम वाटर, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करेंगे, जो कि कहाँ कहाँ काम आएंगे हमारे, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करने में, हाइपरटेंशन में, हमारे किडनी फेलियर्स में, हमारे बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं जहाँ